Good morning, student. In our previous video lecture, we started our topic syntax, and the first part of that was noun. And in that video, I explained before you definition of noun, kinds of noun, and some important rules related with nouns. So, and in this video lecture, first of all, I'll tell you the exercise that I have given in my previous video lecture, exercise 4a. So student, tell your answer. The news are correct. Okay, this one is wrong. Correct answer is the news is correct. Okay, because news is singular noun. I could not get good marks in English. Correct answer is I could not get good marks in English. Next one, the wages of sin are death. Right answer is the wages of sin is death. 10 sheep are grazing in the field. You know, there is the word sheep, the noun sheep always remains same, whether it is used in plural or singular. So answer will be 10 sheep are grazing in the field. The house is under repair. The house is under repairs. Correct answer is the house is under repair. It is a nice poetry. No. Correct answer is it is a nice poem. Your informations are false. Wrong. Right answer is your information is false. Mumps are dangerous. Right answer is the mumps is dangerous. The mumps is then I saw 3 deers in the forest. Correct answer is I saw 3 deer in the forest. Full many of flowers are born to blush unseen. है ना? Many of flowers is born to blush unseen. मतलब रूल है मैनी ए के संग सिंगुलर की वर्ब आती है, और अगर हम ए हटा दें केवल मैनी हो तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ फुल वर्ड की ज़रूरत भी नहीं है. फुल मैनिया का फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन, मतलब बहुत सारे फूल ऐसे जन्म लेते हैं, खिलते हैं जो बिना देखे ही मुरझा जाते हैं. तो इसका राइट आंसर है फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन का. अगर हम इसको मैनी के बाद ए हटा दें तो आर वाला सही हो जाएगा. कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया. राइट आंसर इज कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया. हिज पोएट्रीज आर माइस्टिक. रॉन्ग. हिज पोएम्स आर माइस्टिक. या तो इसका हम करें हिज पोएट्री इज माइस्टिक, ये एक करेक्ट फॉर्म है. और अगर हमें प्लूरल में ले जाना है तो हिज पोएम्स आर माइस्टिक. सम thief has entered my house. Some thieves have entered my house. Next one, he bought 3 soaps. He bought 3 soap. ऐसा हट जाएगा. Her child is suffering from the measles. Her child is suffering from the measles. The poor is unhappy. The poor are unhappy. है ना. जब भी आपके एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आता है तो वो प्लूरल हो जाता है. The poor are unhappy. My trousers are dirty. Wrong. My trousers are dirty. Ashoka's pencil's color is red. The color of Ashoka's pencil is red. Is your scissors dull? Wrong. Are your scissors dull? He has broken the chair's leg. Correct answer is he has broken the legs of chairs. The legs of chair. So student, this is your answer sheet of your exercise 4a, and as a homework you have to continue this exercise from 21 to 34 in this video lecture as an exercise of this video lecture. And today we will discuss some more rules related with nouns. As you know, these words are always confusing. They are noun. According to meaning, we have to decide whether they will be used or in singular or in plural number. Means मतलब साधन. इसका 2 तरह से मीनिंग यूज होता है. As mean is used for the income, उनकी आय का स्रोत. In the meaning of income, it remains always in singular form. And as a meaning of method or meaning of साधन मीन्स जरिया, ठीक है, वी यूज प्लूरल फॉर्म. ठीक. जब मेथड या साधन के रूप में इसका मीनिंग निकलता है तो हम इसे प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं,
और जब इनकम की मीनिंग निकलता है तो हम उसको सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेन्स, ठीक। अब ये भी आपका दैट द यूज ऑफ वेदर इट विल बी सिंगुलर और प्लूरल, दैट विल बी आल्सो डिसाइडेड एट इट्स यूज व्हेन इट इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ मिजरी, है ना, मिजरी कष्ट, है ना, मच पेन वाज सफरिंग बाय द पेशेंट। तो पेन को यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा, दर्द है, पीड़ा है, ठीक, उसको हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। बट एज फार एज द मीनिंग ऑफ पेन्स इज ट्रबल्स, इट विल बी कंसिडर्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जब हम इसे समस्याओं की, मुसीबतों की, चूंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं, उसके रूप में रखा जाएगा तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर वो अनकाउंटेबल नाउन में है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इन सिंगुलर फॉर्म, ओके। एंड हियर वी कैन काउंट, दैट वन इज काउंटेबल नाउन, उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई, ठीक, उसने ही फेस मेनी ट्रबल्स इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारी कितनी समस्याओं को सामना किया, उन समस्याओं को काउंट किया जा सकता है। तो ट्रबल्स के मीनिंग में यहाँ पर हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। उसी पैटर्न पे आपका वेजेस है, वर्ड जो है, अगर ये पनिशमेंट के मीनिंग में आता है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की भरपाई क्या है, पनिशमेंट क्या है, मौत है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर में यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग पनिशमेंट से है, ठीक। लेकिन जब हम इसको मजदूरी के, पारिश्रमिक के सेंस में यूज करेंगे तो इसको जो है हम प्लूरल, क्योंकि उसको गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन है, तो हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक, यहाँ पर उसकी वेजेस, उसकी मजदूरी जो है वो एक सप्ताह में 100 रुपये है, ठीक। तो हम 100 को काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो ये प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें सेंटेंस में यूज करने पर हमें इंडिकेशन देंगे कि उनका हम नाउन फॉर्म यूज करेंगे, कि सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, कि हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट रूल जो है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि सम नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म and some are always used in singular form and there are some rules which are always used in plural form, ठीक है। and the rules related with the collective noun, rules related with the abstract noun, rules related with the material noun, ठीक है। अब आपका एक वर्ड है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे a 10 rupee note, a 4 mile bee, a 5-year-old child, a 3 miles race, ठीक। ये जब कोई भी नाउन कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव की तरह, यानी कंपाउंड माने संयुक्त, मिलकर बना, कंबाइंड नाउन, तो जो कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, मतलब उसके संग सिंगुलर की वर्ब आती है और उसे सिंगुलर के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे ही गेव मी अ 5 rupee नोट, दैट वन इज करेक्ट। अगर हम यहाँ पे रुपी 5 है वो रुपीज कर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर संख्या पहले दी गई होती है तो आपके डिजिट वाले नाउन्स में एस नहीं लगाया जाता। तो ही करेक्ट, आपका ही गेव मी अ 5 rupee नोट, ये करेक्ट है। ही रैन अ 5 mile रेस, माइल्स नहीं होगा, 5 माइल, 5 मील की दूरी, 5 माइल रेस, माइल्स नहीं होगा। तो इस तरह से जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, उसे सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ नेम ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे द स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं ना, ये स्टेट। इस तरह से आपका हिंदुस्तान टाइम्स है जो पेपर का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया है पेपर का नाम है, द अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है। तो ये द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ किंगडम, ये जो चीज़ें हैं जो हमको आंखों में दिखने में लगती हैं कि एस लगा है तो ये प्लूरल की तरह यूज़ किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है या पर्टिकुलर किसी स्टोरी बुक का नाम है,
तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्ट related with the rules of the syntax means how we are going to use our noun in singular and plural form. That one is completed. In our next video lecture, we will continue second part of syntax of noun possessive case. Okay, and you have to do exercise 4a from 21 to 34. In our next video lecture, I will provide the answer sheet of this exercise, and there we will continue second part of the syntax of noun possessive case. Till then, have a nice day. Hello student, welcome to SGY online chemistry classes for class 12. Student, today I am going to start nitrogen family. In previous video मैंने आपको क्या बताया था, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, किस तरीके से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल पाओगे और कैसे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे, उसके संयोजी कोश के बारे में जान पाओगे। आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व स्टार्ट करेंगे। बच्चों, किसी भी ग्रुप को कैसे पढ़ते हैं, किसी भी ग्रुप को पढ़ने के लिए हमको कुछ रूल्स होते हैं। जैसे उस ग्रुप का हमको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, उसकी कुछ भौतिक गुणों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को डील करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे उस ग्रुप के एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है, आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, उन तत्वों के बारे में, और उनके धात्विक करेक्टर्स क्या हैं, उनकी संयोजकता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इस टाइप के जो हेडिंग्स होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, उन तत्वों की वायु से क्रिया हो रही है तो क्या होगा, जल से क्रिया होगी तो क्या होगा, अम्लों से क्रिया करके क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्षारों से क्रिया करके ऑक्साइड बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, हैलाइड्स है तो उनका फॉर्मूला क्या है, कौन से हैलाइड्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो इस टाइप का जितना भी केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन है वो बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो भी इस टाइप की हेडिंग्स है, आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बनता है, इस टाइप की हेडिंग्स है, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी ग्रुप को कैसे पढ़ते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। पहले हम फिजिकल स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे उस ग्रुप के लिए, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे उस ग्रुप के लिए। तो आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का फिजिकल गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन सा ग्रुप नंबर है, जिसको हम ग्रुप 15 के तत्व भी बोलते हैं। ये ग्रुप 15 है। पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक होता है वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन का फैमिली का कौन सा नंबर है, 15वां नंबर है, 5th ए या ग्रुप 15। इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ तत्व आते हैं। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो बच्चों पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2Np126 होता है। तो बोरॉन फैमिली का क्या हुआ, NH2Np1। कार्बन फैमिली का क्या हुआ, NH2Np2। तो नाइट्रोजन फैमिली का क्या हो जाएगा, NH2Np3। फर्दर ऑक्सीजन फैमिली का क्या हो जाएगा, NH2Np4। हेलोजन्स का क्या हो जाएगा, NH2Np5। और लास्ट जो इनर्ट गैसेस बैठे हैं उनका क्या हो जाएगा, NH2Np6। तो ये सबका जनरल है, हमको सबसे मतलब नहीं है, आपसे से मतलब है, सिर्फ नाइट्रोजन परिवार के तत्वों से मतलब है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np कितना होगा, 3 होगा, NH2Np3। देख लेते हैं, नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, NH2Np3। संयोजी कोश क्या है, 2s2, 2p3। जब हम मूव करेंगे फास्फोरस में तो ये पलट जाएगा 3s2, 3p। n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका वैलेंस क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2, 2p3, यहाँ हो जाएगा 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3 एंड फर्दर। इस तरीके से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्ग के तत्वों का सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर्स लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैसे 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर आपको एलिमेंट के साथ याद होने चाहिए, बट मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जैसे ये 5th ए है, ग्रुप 15 है, तो 5th ए का 5 लीजिए, 5 + 2 7,
7 के बाद फिर हम मैजिक नंबर ऐड करेंगे। वो क्या थे मैजिक नंबर? 8, 18, 18, 32। तो यहाँ पे 7 में हमने क्या ऐड करना था? 8 ऐड करना था, तो 15 आ गया। 15 में देन 18 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 में अगेन आप 18 ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। 51 में आप 32 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 83 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप का क्या निकाल सकते हैं? परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक अगर आपको निकाल लिया आपने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। बस आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हो। जिन्होंने नहीं सीखा है वो अब देखिए बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ने हैं? ग्रुप्स पढ़ने हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब होती है भौतिक अवस्था की प्रकृति में किस तरीके से ये तत्व हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हमको मिलता है। ओके, फॉस्फोरस सॉलिड होता है। अगर हम जरा सा भी स्लाइट हीट करते हैं तो ये वोलेटाइल वाष्पशील हो जाता है। इसके अलावा सारे कैसे होते हैं? आपके सॉलिड इन नेचर होते हैं। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस सॉलिड मिलता है, बट जब बहुत थोड़ी सी हीट में वोलेटाइल हो जाता है। बाकी सारे कैसे हैं? सॉलिड है। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अधातु होते हैं। ये दोनों आपके सेमी मेटल जो मिश्र धातु है और इसमें हल्का सा आपका मेटालिक कैरेक्टर होता है। ओके, तो ये इनका फिजिकल स्टेट के बारे में हो गई। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई। मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया था। क्या होता है? किसी भी तत्व की नाभिक तथा बाहरी कक्षा, बाहरी जो बैठा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे, अब हम कोई वर्ग पढ़ रहे हैं, वर्ग कैसे होता है? ऊपर से नीचे। जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका क्या बढ़ रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रही हैं। और जैसे ये शेल्स बढ़ेंगी वैसे ही नाभिक और बाहरी कक्षा में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है? बढ़ जाएगा। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। यहाँ पे हम ग्रुप की बात करें, लेकिन हम आपको दाएं टू बाएं भी आपको पता ही होना चाहिए। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता जाता है। इसका रीजन मैंने क्या बताया था? क्योंकि पीरियड नंबर चेंज नहीं होता है, कमरों की संख्या, शेल्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जेड इफेक्टिव नाभिक का पावर बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने से साइज क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो दाएं टू बाएं जाने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज कैसा होता है? छोटा होता है। वेयर एज when we move up to down then क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आएंगे then क्या होगा? साइज आपका इंक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। नेक्स्ट हम क्या आगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स तो बिल्कुल अपोजिट होता है किसका? एटॉमिक रेडियाई का। जैसे ही हम, आयनिक त्रिज्या होती क्या है? आयनिक त्रिज्या क्या होती है? किसी विलगित गैसीय निकाय के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है वह उस तत्व की क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आपको मैंने ये पिछले टाइम पे भी बताया था, एक इतना छोटा सा आपका तत्व है, उसके ये बाहरी कक्षा में बैठा एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी दी मैंने और इसको बाहर निकाला। एनर्जी का नाम है E1 एनर्जी लगी। यहाँ पर एक मैंने इस तरीके से बना दिया, ये है, यहाँ पे बैठा इलेक्ट्रॉन है, इसको एक एनर्जी दी, उसको नाम है E2। ये वो एनर्जी है जो इस ये इलेक्ट्रॉन पाके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बैठा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इसने अच्छे से होल्ड कर रखा है बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को। वेयर इसकी बात करें हम तो इतना डिस्टेंस बढ़ चुका है कि इस न्यूक्लियस की इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको उतने अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ये एनर्जी, यानी कि जो E1 एनर्जी का मान होगा वो ज्यादा होगा देन E2। अब इसको आप यहाँ पे सोच लीजिए, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन जब कम होगा तो जरा सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है?
घटता है। अब यहाँ पे और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चों तब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कैसा हो रहा था, छोटा हो रहा था। साइज छोटा जब हो रहा था तो आयनन ऊर्जा का मान, क्योंकि साइज छोटा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमको लॉट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता भी है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा में बेटा प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे हो सकती है। हम जितनी बार, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, E1 एनर्जी लगी, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, उसको निकालेंगे, उसको निकालना चाहा हमने तो वो एनर्जी जो लगेगी उसको द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इस टाइप से आयनन ऊर्जा प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे हो सकती है। ओके, अब हाँ बस ये याद रखेंगे कि प्रथम आयनन ऊर्जा, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जितनी एनर्जी लगी वो प्रथम आयनन ऊर्जा हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी बार मैंने उसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा, जो एनर्जी लगी, तो साइज छोटा हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन तो चला गया पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नहीं गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, उसने श्रिंक कर ली, साइज छोटा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, साइज छोटा हो गया, तो जो सेकंड आयनन ऊर्जा का मान होगा वो हमेशा प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से क्या होगा, अधिक होगा। सोच के देखिएगा, जितना साइज छोटा होता जाएगा उतना ही हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ओके, यहाँ क्वेश्चन बच्चों क्या बनता है कि कारण बताइए, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। ठीक है, मैं आपको सिखा क्या रही हूँ कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, त्रिज्या का मान छोटा हो जाता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि कारण बताइए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान से अधिक क्यों होता है? नाइट्रोजन का क्यों अधिक होता है? जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का होना चाहिए, पर नाइट्रोजन सिंपल आंसर है। आप ये देखिए, नाइट्रोजन का ये लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का क्या है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। आपने फर्स्ट क्लास में अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाओं के स्थायित्व के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाएं बहुत ज्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के केस में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, p ऑर्बिटल ये बनाया मैंने, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बच्चों अर्धपूरित की कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का जो p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये एक अर्धपूरित कक्षा है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ज्यादा स्थायित्व होने के कारण ये बहुत स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत ज्यादा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनियर फिजिक्स क्लास। मैं आपका टीचर प्रदीप शर्मा। हाँ, जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और ये परमाणु की संरचना में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रम। आज इसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किन किन भागों में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बात है बहुत पुरानी है ना। जो बामर थे उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था हाइड्रोजन के लिए, और उन्होंने हाइड्रोजन के प्रयोग में ये देखा कि उन्होंने जब हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दी तो उससे अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम मिले। पहले तो उन्हें जो स्पेक्ट्रम मिले उसमें अलग अलग रंग की कुछ लाइनें मिली, जिन लाइनों को उन्होंने नाम दिया H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, इस प्रकार से। यानी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण अलग अलग आपको जो प्रकाश की लाइन्स हैं वो मिलने लगी। तो उन लाइनों को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, H अल्फा, H बीटा, यानी एक तरंग दैर्ध्य को उन्होंने H अल्फा बोला तो दूसरे को H बीटा, तीसरे को H गामा, इस तरह से बोला। तो इस प्रकार से उन्होंने ये विशेष जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग पर उन्होंने देखा कि ये जो तरंगें हैं, ये जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो रही, ये एक विशेष श्रेणी की है।
इसके बाद भी इसमें और भी कुछ अलग अलग तरंगें प्राप्त होती हैं, और भी कुछ अलग अलग वेव्स मिल रही हैं जो अलग श्रेणी में पाई जाती हैं। तो उसके बाद उन्होंने इस प्रयोग को जारी रखा। हालांकि इसके लिए बामर को एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार भी दिया गया उस समय, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये प्रयोग और जारी रहे, और जारी रहने के बाद ये पाया गया कि कुछ और तरंगें निकलती हैं जो पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ तरंगें निकलती हैं जो जो अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया तो देखा कि इसमें 5 अलग अलग श्रेणियाँ बनती हैं। कितनी श्रेणियाँ बनती हैं? 5। और ये पांचों श्रेणियाँ जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं। अलग अलग काम कैसे करती हैं? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो दृश्य भाग में पाई जाती हैं, ठीक है, वो श्रेणियाँ हैं हमारे पास बामर श्रेणी, जो कि बामर के ही नाम पे रखी गई थी। और कुछ और तरंगे हैं जो पराबैंगनी भाग में पाई जाती, उन्हें उन्होंने नाम दिया लाइमन श्रेणी। इसके बाद पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जो श्रेणियाँ थी वो पाई गई अवरक्त भाग में, है ना। स्पेक्ट्रम के ये सारे भाग हैं। स्पेक्ट्रम में 7 अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं, दृश्य भी है, पराबैंगनी भी है और अवरक्त भी है, ठीक है। अब कहानी वहाँ से आते हैं जो बोहर ने बताई थी। बोहर ने हमको ये बताया था कि अगर हम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो वो ऊर्जा उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर क्या होता है, अपनी कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है, जहाँ पर वो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है, और रुकने के बाद ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए अपनी पुरानी कक्षा में लौट आता है। तो जिस समय वो लौट रहा होगा उस समय उसके पास कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे और बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक स्पेक्ट्रम के लिए एक बेसिक यानी छोटा सा डायग्राम बनाया। देखो ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास बेसिक कक्षा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ना कि हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करते हैं या किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक रह सकता है, केवल n=1 कक्षा तक रह सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता है। यानी जो ग्राउंड लेवल होगा वो हमारे लिए क्या है, n1=1 है। इसके ऊपर और भी कक्षाएं होती हैं, यानी जैसे ये जो है ये दूसरी कक्षा है, ये जो है ये तीसरी कक्षा है, ये जो है ये चौथी कक्षा है, ये जो है ये 5वीं कक्षा है, ये जो है वो 6वीं कक्षा है, 7वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा है। इस तरह से आप n कक्षाएं ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अब अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो इसमें हमने बताया था हमारे पास कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। 5 श्रेणियों का मतलब क्या हुआ कि n1=1, n1=2, n1=3, n1=4, n1=5। ये 5 कक्षाएं हमारे पास काम करने के लिए अभी मिली। इन लंबाई श्रेणियों को बांटने के लिए हमारे पास जो कक्षाएं हैं हमने बताया था, पहले जो आपको श्रेणी मिलेगी वो होगी लाइमन श्रेणी, दूसरी जो होगी वो होगी बामर श्रेणी, तीसरी जो होगी उसे हम लोग कहेंगे पाश्चन श्रेणी, चौथी जो होगी उसे कहेंगे ब्रैकेट श्रेणी, और 5वीं जो होगी उसे कहेंगे फुंड श्रेणी, ठीक है। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है वो श्रेणियां कितनी होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। इनको डिवाइड कैसे करेंगे, चलो देखो। अब कहानी ये है कि मान लिया ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, और ये कक्षाएं कहाँ तक हो सकती हैं, n तक हो सकती हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, पहली कक्षा में। बाहर से ऊर्जा इसको मिल गई और मिलकर ये कहाँ तक जा सकता है, nवीं कक्षा तक जा सकता है ना। अब अगर ये nवीं कक्षा तक जा रहा है तो इस समय ये उत्सर्जित होके जा रहा है, यानी ऊर्जा लेके जा रहा है, लेकिन जब यहाँ से वापस आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए। तो हम आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा मिल रही है, जो ऊर्जा खर्च करते हुए आ रहा है, उसकी बात करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी nवीं कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए यदि पहली कक्षा में आता है, इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए यदि पहली कक्षा में आता है, तो उसकी जो श्रेणी होगी वो कौन सी होगी, लाइमन श्रेणी।
कौन सी होगी? लाइमन श्रेणी होगी। लाइमन श्रेणी के लिए यानी n1 बराबर 1 फिक्स, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि nवीं कक्षा से ही आ सकता है, ये उससे पहले वाली कक्षा से आ सकता है, ये उससे पहले वाली कक्षा से आ सकता है, ये उससे पहले वाली कक्षा से आ सकता है, ये उससे भी पहले वाली कक्षा से आ सकता है, ये उससे पहले वाली और ये उससे पहले वाली। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दूसरी कक्षा से भी आ सकता है, तीसरी कक्षा से भी आ सकता है, चौथी कक्षा से भी आ सकता है, पांचवी कक्षा से भी आ सकता है, छठी, सातवीं और nवीं कक्षा से जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए पहली कक्षा में आता है तो ये जो श्रेणी बना रहा है वो श्रेणी का नाम होगा लाइमन श्रेणी। क्या होगा? लाइमन श्रेणी। यानी ये कौन सी श्रेणी को बेटा प्रदर्शित कर रहा है? लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है। यानी इसके लिए n2 बराबर क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट n तक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पहले ये समझ के चलते, ठीक है। यानी लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर तो 1 फिक्स हो गया, लेकिन n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n तक, ठीक। फिर अगली बात करते हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए दूसरी कक्षा में आएगा, यानी किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अगर ये दूसरी कक्षा में आता है तो बेटा इसकी जो श्रेणी होती है वो बन जाती है बामर श्रेणी। कौन सी बन जाती है? बामर श्रेणी, ठीक है, याद रहेगा। यानी अगर बामर श्रेणी की बात करेंगे तो इसके लिए n1 बराबर कितना हो गया? 2, तो n2 बराबर अब 2 तो नहीं हो सकता, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और n होंगे। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। अगर मान लिया कि यही इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए तीसरी कक्षा में आता है, ठीक है, यानी यहां से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अगर ये तीसरी कक्षा में आ रहा है तो जो ये श्रेणी बनाएगा वो कौन सी होगी? पांचचंद श्रेणी। यानी ये कौन सी श्रेणी हो गई? पांचचंद श्रेणी। अब ये जो पांचचंद श्रेणी आपकी बन रही है इसमें n1 बराबर कितना आ गया बेटा? 3। n1 बराबर कितना आ गया? 3, जबकि n2 बराबर कितना हो जाएगा? n2 बराबर अब आप यहाँ पर 3 तो नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या 1 कर सकते हैं? नहीं। अब यहाँ पर हम n2 बराबर जो लिख सकते हैं वो होगा हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट n तक, ठीक है। अगली कहानी है, अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए चौथी कक्षा में आ रहा है, यानी किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अगर ये चौथी कक्षा में आ रहा है तो ये कौन सी श्रेणी बनाएगा? ये बनाएगा ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट श्रेणी के लिए देखो हमने बताया है n1 बराबर कितना होगा? 4, जबकि n2 बराबर हो सकता है 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट n तक। क्लियर है? अगली बात करते हैं कि अगर हमको बता रहा है कि अगर ये किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए पांचवी कक्षा में आता है तो ये जो श्रेणी बनाएगा वो कौन सी होगी? फुंड। और फुंड श्रेणी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास n1 बराबर कितना हो गया? 5, जबकि n2 बराबर कितना हो गया? 6, 7, 8, 9 से कहां तक? n तक। ये हमारी हो गई पांचों श्रेणियां। ये हमारी क्या हो गई? पांचों श्रेणियां। पांचों श्रेणियों में हम आप समझ सकते हैं कि अगर n1 बराबर 1 है तो लाइमन है, अगर n1 बराबर 2 है तो बामर है, अगर n1 बराबर 3 है तो पांचचंद, n1 बराबर 4 है तो ब्रैकेट है और n1 बराबर 5 है तो क्या है? ये फुंड है। अब एक बेसिक बात करते हैं कि इन अलग अलग जो हमें दिख रही है, अगर मान लो ये वाली हमको तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, कह रहा है ये जो लाइन है इसको कहेंगे पहली लाइन है H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, ठीक है। इस तरह से ये सारी लाइनों को हम प्रदर्शित करेंगे। मान लो कहता है कि अब हमें पहली लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, यानी पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी, दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी, तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है तो तरंगदैर्घ्य कैसे प्राप्त करेंगे? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य प्राप्त करने का भी एक सूत्र है जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। तरंगदैर्घ्य यानी 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ गए? अब अगर कहा जाएगा तो भैया देखो जरा, लाइमन के लिए 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n क्या है तो भैया बताएंगे ना, n बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, n है।
ठीक है। फिर अगर बात कहता है बामर श्रेणी के लिए बताओ, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। फिर से वही बात है, इस बार लेकिन n2 नहीं हो सकता, इस बार n3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, n तक। अगर यहीं पर कहता है पाश्चन की बात करेगा तो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n बराबर इस बार 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, n तक। अगर यहीं पर कहता है ब्रैकेट और फुंड की, तो वो भी कहानी हम बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ा के चलेंगे। ठीक है। अब मान लो आपसे कहता है कि लाइमन श्रेणी क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। तो लाइमन श्रेणी की परिभाषा हम कैसे बताएंगे? जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से, nv तक की बात कर ली हमने, किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए पहली कक्षा में आता है, तब उसकी श्रेणी जो होती है वो कौन सी होती है? लाइमन श्रेणी। इसके लिए n1 बराबर 1 है और n2 बराबर हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n तक लिख सकते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जिसमें n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर इसी तरह से कहता है बामर श्रेणी, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु का जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए दूसरी कक्षा में आता है, तब उसकी जो श्रेणी होती है उसे हम कहते हैं बामर श्रेणी। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। और इसके लिए n1 बराबर जो होता है वो 2 होता है और n2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट n तक होंगे। और इसके लिए जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र है वो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसमें n बराबर बता चुके हैं 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट n तक होंगे। इसी प्रकार अगर हमसे कहता है पाश्चल श्रेणी, तो पाश्चल श्रेणी में भी हम ये बताएंगे हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए तीसरी कक्षा में आता है, तो उसकी जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? पाश्चल श्रेणी होती है। इसके लिए n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट n तक लेंगे, यानी n का मान 2, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जिसमें n की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती है। ब्रैकेट की अगर कहानी लिखते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए चौथी कक्षा में आता है, तो इसकी जो श्रेणी होती है वो श्रेणी होती है ब्रैकेट श्रेणी। और इस श्रेणी के लिए n1 का मान 4 होता है और n2 का मान 5, 6, 7, 8 होता है। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होगा वो आएगा 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जिसमें n की जो वैल्यू है वो 5, 6, 7, 8 हो जाएगी। फुंड की अगर बात करते हैं तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में ऊंची कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए नीचे यानी 5वीं कक्षा में आता है, तो उसकी जो श्रेणी होती है वो श्रेणी होती है फुंड। इसके लिए n1 बराबर 5 होगा, n2 बराबर 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट n तक ले सकते हैं। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। विशेष बात मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बना रहा हूँ, ये जो श्रेणी है ये पाई जाएगी पराबैंगनी भाग में, पराबैंगनी भाग में स्पेक्ट्रम के। ये जो श्रेणी है ये मिलेगी दृश्य प्रकाश में, और ये जो श्रेणियां बनने वाली हैं ये आपको मिलेंगी अवरक्त भाग में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के तीनों भाग में ये जो है वो स्पेक्ट्रम हमको मिल रहे हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से बनाइए, बनाकर इनकी स्टडी कीजिए। चैप्टर खत्म हो गया है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।